السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم نے اس ویڈیو کا جواب دینا ہے جس سے سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ملا حضرات ہیں، یہ جو داڑھی والی عورتیں ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور مسلسل یہ شیطان کی روش پہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آج کی ویڈیو بہت خاص بننے والی ہے۔ عقیل غروی صاحب نے بے غیرتی کی، جہالت کی، بدعقیدگی کی، لا علمی کی اور کفر و شرک کی انتہا کر دی ہے۔ اسے کراچی میں بلایا گیا شاید اس وجہ سے کہ تاکہ یہ سامعین کو، مومنین کو شرک کے راستوں پر چلا سکیں۔ سامعین، اب سب سے پہلے اس ملعون ازلی کا بیان سنیں۔ آج میرے پاس سخت الفاظ ہیں کیونکہ اس نے بغیرتی ایسی کی ہے۔ اس ملعون کا پہلے بیان سنیں، اس کے بعد اس خبیث کو ہم انشاءاللہ مدلل جواب پیش کرتے ہیں۔ لیٹس واچ۔ ولایت معصوم جھوٹ ہے، ولایت مصطفیٰ غلط ہے، ولایت علی غلط ہے۔ علی موجود نہیں ہے، مصطفیٰ موجود نہیں، معصوم موجود نہیں، معصوم کے مکتب کا فقیہ موجود ہے۔ کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کس کی بیعت کی؟ ظاہر میں ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین کی تھی۔ آج سید علی خامنئی کا ہاتھ ہے، بیعت امام مہدی کی ہے۔ ہم انہیں معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کو بھی معصوم نہیں کہتے۔ جی سامعین، تو آپ نے سنا، یقیناً آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ اس قدر جہالت سے کام لینا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ میں، اور مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے لحاظ سے وہاں سے بیعت لی تھی، اور اس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح مسلم نے کوفہ والوں سے امام حسین کے لیے بیعت لی تھی، ایسے ہی آج اس دور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ خامنائی مولوی جو علی خامنائی صاحب ہیں، ان کی بیعت نعوذ باللہ امام وقت امام مہدی کی بیعت کہلاتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سب سے پہلی بات میں اس جاہل انسان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے پاس امام حسین علیہ السلام کا اجازت تھا، مولا کا حکم تھا، بادشاہوں کا اختیار تھا، بادشاہوں نے اسے بھیجا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس معصوم نے انہیں حکم دیا ہے، کس امام نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ نے امام زمانہ علیہ السلام نے جب غیبت میں جانا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ اپنا جھنڈا بلند کریں، آپ اپنی ولایت قائم کروائیں اور آپ اپنی بیعت کروانا شروع کر دیں؟ ان کے پاس اجازت کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل کون سی ہے؟ میں اس عقیل غروی سے، جس نے 2 فٹ کی شیطانی داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن عقل سے خالی ہے، مسلسل شیطان کی صفات کا اظہار کرتا ہے یہ بندہ آ کے، بھائی ہمیں بتائیں مسلم بن عقیل کے پاس امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اجازت تھی، ان کے پاس کون سی اجازت ہے؟ اور دوسری بات، انما یرید اللہ، اس آیہ مبارک کے مطابق آپ کو کس نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ مسلم بن عقیل نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے؟ بھئی یہ آپ کا جاہلانہ عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کلنا محمد کے ماننے والے ہیں۔ اس گھر کا علی اصغر بھی معصوم ہے، علی اکبر بھی معصوم ہے، امام سجاد بھی معصوم ہے، اور محمد بھی معصوم ہے۔ کیوں؟ یہ گھرانہ اللہ نے بنایا ہی عصمت کا گھرانہ ہے۔ لیکن ایک جاہل بندہ، ایک انڈیا سے آیا ہوا ایک جاہل لونڈا مولوی، وہ آ کر ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ایک غیر معصوم مولوی کی بیعت کروانے کی دعویٰ دیتا ہے، اور اس کی بیعت کو نعوذ باللہ معصوم کی بیعت کہتا ہے، بنا کسی دلیل کے، بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی حکم کے۔ اور وہاں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ یار اتنی جہالت ہو گئی، لوگ پتھر کی دیواریں بن کے، اندھے بہرے گونگے بن کے وہاں بیٹھے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہے۔ ہمیں مجبوراً یہ آواز اٹھانا پڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ آواز بلند کریں گے، سامعین کو یہ شعور دیں گے کہ ایسے جاہل مولوی، ایسے شیطان کے طاغوتی نظام کو رائج کرنے والوں کو ممبر سے ہٹایا جائے، خدا کے لیے ممبر سے دور رکھا جائے۔ یہ ان کا ظاہری ابا کبا کا لباس جو ہے یہ معصوم کا نہیں، یہ شیطان کا لباس پہنا ہوا ان لوگوں نے۔ اور وہ امامہ جس میں تحت الحنک نہیں ہوتا، معصوم نے اسے شیطان کا امامہ قرار دیا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ صرف پہنتے نہیں ہیں، یہ کام بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کام شیطان کرتا ہے۔ اس مولوی صاحب کو جو پہلی میں دلیل دینے والا ہوں، اگر ہمت ہوگی اس میں نہیں، کسی لونڈے میں
किसी बेगैरत बदअकीदा इंसान ने, अगर जरूरत है हमारे दलाल का जवाब दिया जाए। इन्होंने हमारे इमाम के हक पर डाका डाला है, इस्मत मासूम पर डाका डाला है, जनाब मुस्लिम बिन अकील की इन्होंने तौहीन की है। पहली दलील मैं देता हूं, बिहारुल अनवार है भाई किताब, जिल्द नंबर इसकी 53 है। छठे बादशाह फरमाते हैं, बाकायदा यही सवाल बैत से मुतल्लिक पूछा गया। इमाम मासूम फरमाते हैं मुफज्जल से कि या मुफज्जल, ए मुफज्जल, कुल्लु बैअतिन क़ब्ला ज़हूरिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल कोई भी बैअत हो, मुतलक कानून है, किसी भी तरह की कोई भी बैअत हो तो क्या होगी? बैअतो कुफ्रिन व निफाकिन व खदियतिन, कि वो कुफ्र की बैअत होगी, वो मुनाफिकत की बैअत होगी, वो खसारे और घाटे की बैअत होगी। जी मौलवी अकील गरवी साहब, जनाब मुस्लिम बिन अकील के पास तो इजाज़त था, मासूम ने हुक्म दिया था कि जाकर बैत लेनी है और हमारे नाम की बैत लेनी है, और वो इस इस्मत वाले घराने से थी, साहिब इस्मत थी। लेकिन इनके पास कौन सा इजाज़ा है, और वो भी इस गैबत के दौर में, जिस दौर के बारे में इमाम सादिक ने फरमा दिया कि कुल्लो बैअतिन क़ब्ला ज़हूरिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, मौला कायम के ज़हूर से पहले कोई भी बैत होगी तो वो कुफ्र की बैत होगी, वो मुनाफिकत की बैत होगी, वो घाटे और खसारे की बैत होगी। आप हमें कुफ्र की बैत की दावा देते हैं, आप हमें मुनाफिकत की बैत की दावा देते हैं, आप हमें घाटे की बैत की दावा देते हैं, मिंबर हुसैनी पे बैठ के आप दावा देते हैं। साहिब इल्म से मैं पूछना चाहता हूं, इस बंदे को रोका क्यों नहीं गया मिंबर से? इसकी ये बकवास सुनी क्यों गई है? कि आवाम इतनी बहरी हो चुकी है कि आवाम के कान में रोड़े डाले हुए हैं, पत्थर डाले हुए हैं, बहरे हो चुके हैं ये लोग, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सामीन ग्रामी का, और मासूम ने ये नहीं कहा फ़कत कि ये जो बैत जो इमाम कायम के ज़हूर से पहले होगी वो फ़कत कुफ्र और निफाक की बैत होगी। मौला फरमाते लाअनल्लाहु, कि अल्लाह लानत करता है जो बैत ले रहा होता है और जो बैत कर रहा होता है, इन दोनों पे लानत होती है। ये सरेआम आपको लानती बनने की दावा देता है और आप उसे मिंबर पे बिठाते हैं और उसकी पब्लिसिटी की जा रही होती है। सामीन ग्रामी का, खुदा के लिए होश के नाखल लें, बेदार होने का वक्त है, इस्मत मासूम के निज़ाम का वक्त है। छोड़ दें ये बैत बिदअत वाली बैतें और ये कुफ्र वाली बैतें, ये निफाक और मुनाफिकत वाली बैतें, इन सब को साइड पे फेंका जाए। और ये तकलीद का पट्टा और ये विलायत फ़क़ी मुतलक ये बिदअतें हैं इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, इनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। सामीन ग्रामी का, इसके बाद जो अगली दलील है, ये मेरे बस किताब है गैबत नौमानी। कितने साल पुरानी किताब? 1100 साल पुरानी किताब है गैबत नौमानी, कदीम किताब। इसमें सफ़र नंबर 142 पर ज़रा देखिए, मुफज्जल से इमाम मासूम फरमाते हैं, जनाब सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारे मुकाम यानी इमाम होने का दावा करे, जो हमारे मुकाम का दावा करे, जो हमारे मुकाम का दावा करे, वो कौन है? वो काफिर है। फिर फरमाया वो मुशरिक है। अरबी मतन देखना चाहें तो बिहारुल अनवार है, जिल्द नंबर इसकी 25 है, सफ़ा नंबर 114 है। देखिए ज़रा, पढ़िए। मासूम ने फरमा दिया जो हमारे मुकाम का दावा करे। भाई बैअत मासूम का हक है, अब जिसने इसका दावा किया वो कौन कहलाएगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं। और सामीन कौम से पूछना चाहता हूं, इमाम के हक में डाका डाला, किसी को इमाम खुमैनी बना दिया, किसी को इमाम खमनाई बना दिया। मासूम फरमाते हैं जिसने जो इमाम ना हो इमाम होने का दावा करे उसके लिए दर्दनाक अजाब है और उस पर अल्लाह और मलाइका लानत करते हैं। तुम हमें लानती बनने की दावा देते हो और हम खामोश बैठे रहें? ये हो ही नहीं सकता। सामीन ग्रामी का, तो जो इमाम मासूम के हक का दावा करेगा, उनके मुकाम का दावा करेगा, मासूम फरमाते हैं वो काफिर है, वो मुशरिक है। और मुशरिकीन पे भी लानत है, काफिरों पर भी लानत है। इसी तरह दूसरी रिवायत जरा पढ़िए। अब इस बंदे ने क्या कहा? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि मासूम की विलायत नहीं है, नबी पाक की विलायत नहीं है, इमाम अली की विलायत नहीं है और इसे झूठ करार दिया है। खुदा तुझ पे लानत करे, तू सबसे बड़ा झूठा है। जिस बेगैरत ने मासूम की विलायत को झूठ करार दिया है उससे बड़ा लानती, हरामजादा, फासिक, फाजिर कौन हो सकता है भला? मासूम की विलायत को तूने झूठ कह दिया, जिस विलायत के बगैर कायनात बका में रह ही नहीं सकती। और फिर कह दिया कि बस विलायत है तो नाउज़ुबिल्लाह विलायत फ़क़ी है, जिस पर कोई दलील नहीं मिलती,
कोई भी दलील नहीं मिलती। जो सरासर बिदअत है, सरासर एक जहालत है, कुफ्र की दावत है, शिर्क की दावत है, उसे आपने आवाम के सामने प्रचार कर दिया। क्यों? मौलवी के फंड पे जो आप गुजारा कर रहे हैं, आपकी रोटी चल रही है, आपका लंगर चल रहा है, उसी निज़ाम से आपने उनके दिए हुए हराम रिस्क को हलाल तो करना है, मासूम की मुखालफत तो करनी है, मुल्ला की पूजा तो आपने करवानी है, जो सरासर शिर्क है, जो सरासर मुनाफकत है, कुफ्र जिसे कहा जाता है। खुदा के लिए अवाम उन्नास से मेरी अपील है कि जागे, उठे, बेदार होइए। ये वक्त है बेदारी का। विलायत फ़क़ीह किसी की जाए जनाब, विलायत फ़क़ीह को माना जाए, बस विलायत फ़क़ीह है, नाउज़ बिल्लाह। मासूम की विलायत नहीं है, नबी पाक की विलायत नहीं है, मौला अली की विलायत नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, झूठ करार दे दिया। अल्लाहु अकबर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बेशुमार। सामीन ग्रामी का। अब आइए ज़रा इसी किताब गैबत नुमानी में सफ़ा नंबर 142 पर ही देखिए ज़रा। मासूम फरमाते हैं कि कायम आले मोहम्मद इमाम महदी के परचम से पहले जो भी परचम उठेगा वो तागूत का परचम होगा। जी जनाब, जो भी परचम उठेगा। अरबी मतन भी आप देख सकते हैं, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर इसकी 25 सफ़र नंबर 114 पर। अरबिक मतन में भी आप देख सकते हैं, इमाम महदी के ज़हूर से कबल जो भी परचम उठाया जाएगा तो वो तागूत का परचम होगा, शैतानी निज़ाम होगा। अकील गरवी साहेब, तो मासूम की विलायत के बिलमुकाबिल किसी विलायत को मानना भी तागूत का निज़ाम है। मासूम की इमामत के बिलमुकाबिल किसी को इमाम कहना भी तागूत का निज़ाम है। मासूम के बिलमुकाबिल किसी को आयतुल्लाह कहना भी मासूम के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह तागूती निज़ाम का एहतमाम करना है। और मासूम की विलायत के बिलमुकाबिल विलायत फ़क़ीह की बिदअत को लेके आना, इसे ही तागूत कहा जाता है। मुल्ला का झंडा उखाड़ फेंकें, मासूम और मौला के झंडे के कायल हो जाइए, जिसकी बैत ली जानी है, जिसका हुक्म है। आप यहाँ पे आके मासूम की मारिफत कराएं, मासूम के फ़ज़ाइल सुनाएं, मासूम की बैत कैसे होगी ये आके सिखाएं। अब मुल्ला की पूजा करवाते हैं, मुल्ला के तलवे चटवाते हैं आवाम से, और अवाम उन्नास खामोश बैठी है, वाह वाह किए जा रहे हैं। एक बड़ा अबू जहल आता है, जहालत बकता है, अवाम वाह वाह करती है। मासूम इमाम ज़माना के हक में डाका डालता है, अवाम वाह वाह करती है। भाई ऐसों को पकड़ के जूतियां मारी जाएं जिन्होंने मासूम के हक में डाका डाला है। ना कोई दलील, ना कोई हवाला, ना कोई सबूत, और उल्टा मासूम के घराने के फर्द मुस्लिम बिन अकील को, जो करबला का पहला शहीद है ऐसा समझिए, दीन को बचाने वाला पहला फर्द है इस घराने का, उसे आपने गैर मासूम कह दिया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम जैसे नजस नुत्फे के हरामी बच्चे गैर मासूम होते हैं, हमारे मासूम पे आप डाका डालते हैं, इस्मत आले मोहम्मद पे आप बकवास करते हैं, आगे कुरान जिनकी गवाही देता है। अफसोस, सद अफसोस। जो भी झंडा उठाया जाएगा इमाम कायम के ज़हूर से पहले, हर झंडा तागूत का झंडा होगा, हर बैत कुफ्र और निफाक की बैत होगी, और खुदा उन पे लानत करता है। अवाम को लानती मत बनाइए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं खुदा के लिए, अवाम उन्नास पे रहम कीजिए। 2 फुट की दाढ़ी से आप साहिब इस्लाम नहीं बन जाते। हमने अक्सर लंबी दाढ़ी रख के जो इस्लाम का दावा करते हैं उन्हें मुनाफकत करते देखा है, और जैसे आपकी मिसाल सामने है। और इसके बाद आखिरी हवाला, इस लिहाज से बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं हमारे पास, इनका मुंह बंद करने के लिए बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये जो हवाला मैं पेश कर रहा हूँ आखिरी और हतमी हवाला है। अगर अकील गरबी में शर्म नाम की कोई चीज़ होगी और इसके जो चाहने वाले हैं उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ होगी, तो इन हवालाजात का हमें जवाब दिया जाएगा। बिहारुल अनवार है सामीन ग्रामी का, इसकी जिल्द नंबर 35 और 36 है, इसका तर्जमा हो चुका है। सफ़र नंबर 360 है। तो यहाँ पर अबू मूसा फरमाते हैं कि मैं अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास था, कुछ कूफी लोग हाजिर हुए, उन्होंने अल्लाह के इस कौल के बारे में पूछा, अगर तू शिर्क करेगा तो तेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान की आयत के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया कि ऐसे नहीं, जिधर तुम जा रहे हो, बेशक अल्लाह ताला ने जब अपने नबी को हुक्म दिया अली की विलायत का ऐलान करे तो मुआज़ बिन जबल उठी और कहा कि इसकी विलायत में अव्वल सानी को शामिल करें, हत्ता के लोग इस कौल से सुकून पकड़े और आपकी तस्दीक करें। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ पैगम्बर पहुँचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतरा है, यानी अली की विलायत को पहुँचा दो। तो नबी पाक ने जिब्राइल से शिकायत की कि लोग मुझे झुठलाते हैं और कबूल नहीं करते। तो आयत उतरी कि अगर आपने शिर्क किया तो आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप खसारे वालों में से हो जाएंगे। इस आयत में अल्लाह ने कौम को तंबीह किया था कि अगर आप लोगों ने शिर्क किया, अली की विलायत में किसी पहले दूसरे को शामिल कर दिया तो तुमने शिर्क कर दिया है।
اور تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی عقیل غروی صاحب، اور آپ نے صرف شرک نہیں کیا، آپ نے نئی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، ولایت فقیہ کا اعلان کر دیا ہے، بالکل طاغوت کا نظام لے کے آ گئے ہیں، شیطان کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اللہ نے اسے مشرک قرار دیا ہے، اسے شرک قرار دیا ہے، اور اس کے ارتکاب کا جو حامل بندہ ہوگا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ناقابل واپسی، ناقابل معافی جرم۔ آپ ہمیں کہتے ہو ہم غالی ہم مشرک ہیں، شرک کی تبلیغ آپ کرتے ہو، مشرک کا اظہار آپ کرتے ہو۔ ابھی آپ نے یہ جو بیعت کروائی غیر معصوم کی، اور دوسرا آپ نے ولایت فقیہ کا اعلان کیا ہے، قرآن اسے شرک کہتا ہے، معصوم نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ یقیناً آپ اول اور ثانی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، آپ کا مذہب بھی وہی مذہب دکھائی دیتا ہے، ورنہ معصوم کی بیعت چھوڑ کے غیر معصوم کی پوجا اور کوئی نہیں کروا سکتا ما سوائے منافقین کے، اور منافقین پر اللہ کی لعنت ہے۔ خدا کے لیے عوام الناس سے میری اپیل ہے، بیدار ہوئیے، سوچ اور سمجھ سے کام لیجئے، اس طرح کے طاغوت کے نظام کو رائج کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں، عصمت اہل بیت کا کام کریں، آل محمد کے نظام کو اپنائیں، آل محمد کی اتباع کریں، آل محمد کی پیروی کریں، آل محمد کی تقلید کریں، آل محمد کی بیعت کریں، آل محمد کی حدیث اور قرآن پر عمل کیجیے۔ والسلام، یا علی مدد۔